बर्थडे के दिन कितना काम so hello all, I welcome you again in my lecture. Today there is a topic and I will say it's a very interesting topic because we all are very much motivated to speak English. All right, we all want to speak English very fluently in accents and everything like. But what is the basic thing that we don't know where this language originated from? You all may be very much surprised to know that English was just a dialect. Dialect here means boli. The boli that we can say a regional language or something like that, but English language was just a dialect. And how does it evolve from a dialect to a global language? So, in this lecture, we will think about it and we will discuss about it. All the queries will be answered, and my students, you can just, after my explanation, you can just ping me up for any query. So, here I go. I will share my PPT. Yeah. So I hope my screen is visible. So the topic is development of English through ages. Through ages, what I mean by that, because English has developed very much gradually. In earlier phrase, there was nothing like grammar, there was nothing like accents. People just used to speak it. But why? Just to communicate. Okay. So here we will understand what was the phases, what were the phases, what was the gradual changes that now English is a global language, English is a world language. For a good start, I would like to give you some facts related to English. English is a West Germanic language that was first spoken in early medieval England and is now a global bridge language. तो what is English? English एक West Germanic language है जो कि पहली बार कहाँ बोली गई? मिडिवल इंग्लैंड में. पर आज इंग्लिश क्या है? एक ग्लोबल ब्रिज लैंग्वेज है. Why it's called global bridge language? For example, I am talking to a South Indian guy and I don't know South Indian language like Malayali or Tamil. Okay, but what I know is English. He doesn't know Hindi. He doesn't know Hindi. So how we will bridge the gap of communication between us? We will do it through the language English. Okay, I can talk to anyone through this language. Why? Because it's termed as global language because its grammar is comparatively simpler to other languages. It is an official languages of almost 60 sovereign states. सोचिए 60 sovereign states की ये official language मानी गई है. Most commonly spoken language in the United Kingdom, the United States, Canada, Australia, Ireland and New Zealand. बड़ी कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड, ये इन जगह बोले जाने वाली लैंग्वेज है. इट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन नेटिव लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. थर्ड मोस्ट कॉमन नेटिव लैंग्वेज. First language is Mandarin, a Chinese type of Chinese language. It gains the first position. English has developed over the course of more than 1400 years. सोचिए, जो आप आज पढ़ रहे हैं वो 1400 ईयर से उसका डेवलपमेंट होता जा रहा है, तब जाके आज आपके सामने एक प्रॉपर लैंग्वेज आई है जिसका आप नाम इंग्लिश कहते हैं. Origin. So that's what I want to talk about, that from where it originated. The earliest form of English is called Old English or Anglo-Saxons, 550 to 1066 CE. So Anglo-Saxons, actually Anglo-Saxons एक ट्राइब थी. वेस्ट जर्मन्स में एंग्लो सेक्सन्स एक ट्राइब थी जिसकी वजह से, जहां से ये ट्राइब ने ये इंग्लिश को ओरिजिनेट करवाया. ये ट्राइब इधर 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 जाती गई और ये लैंग्वेज के दायरा बढ़ता गया. Old English developed from a set of North Sea Germanic dialects originally spoken along the coast of Frisia, Lower Saxony, Jutland, and southern Sweden.
spoken by Germanic tribes like Angles, Saxons and Jutes. कहाँ बोली जाने लगी है? जो Germanic tribes थी like Angles, Saxons and Jutes. Most closely related to English are the Frisian languages, and English and Frisian form the Anglo-Frisian subgroup with West Germanic. Okay? अब आप सोच रहे हो कि एक लैंग्वेज किस तरह से बनती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी की आज बात करती हूँ, हिंदी संस्कृत से निकली, संस्कृत इंडिया की ही लैंग्वेज थी, ठीक है. तो हिंदी कहीं ना कहीं सिर्फ उस दायरे में सिमट गई. ओके, बट अगर मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, जब मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ तो इंग्लिश क्या हुआ, फैलती गई. क्यों फैलती गई? क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूसरी लैंग्वेजेस से इजी टू स्पीक थी. ओके, इसलिए वो फैलती गई. ओल्ड सैक्सन्स एंड इट्स descendant Low German languages are also closely related, and sometimes Low German, English and Frisian are grouped together as the ingoing languages. ठीक है, इन लैंग्वेजेस का एक ग्रुप है जिसको हम इग्मोनिक लैंग्वेजेस का ग्रुप कहते हैं. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये लैंग्वेज की एक फैमिली है. ओके, जैसे हम अपनी फैमिली को बोलते हैं ना, दैट दे आर आवर एंसेस्टर्स, दे आर आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स, तो ऐसे ही लैंग्वेजेस की भी फैमिली होती है. लैंग्वेज फैमिली इंडो यूरोपियन, देन जर्मनिक में वेस्ट जर्मनिक, नॉर्थ सी जर्मनिक, एंग्लो फ्रीशियन, एंग्लिक, एंड देन कम्स द इंग्लिश. राइटिंग सिस्टम सिंस द 9th century. ओके, कैन एनीवन टेल मी अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st. Very good. Since the 9th century, English has been written in a Latin alphabet, also called Roman alphabet. Look, English ना बहुत सारी languages का एक कह सकते हैं combination. ठीक है, इंग्लिश में आपको फ्रेंच वर्ड्स भी मिलेंगे, आपको लैटिन भी मिलेंगे, आपको स्पेनिश भी मिलेंगे, some of the Sanskrit words too. Since the 9th century, English has been written in a Latin alphabet, also called Roman alphabet. Earlier, Old English texts in Anglo-Saxon runs are only short inscriptions. Short inscriptions मतलब छोटे-छोटे टेक्स्ट लिखे गए थे. The great majority of literary works in Old English that survive today are written in Roman alphabet. ठीक है, जो आज भी मतलब कुछ ऐसे वर्ड जो सर्वाइव कर रहे हैं, they are written in Roman text, Roman Latins. Modern English alphabet contains 26 letters of the Latin script. ठीक है, अब आप समझो, जो अपन A से Z तक 26 लेटर्स की जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, A for apple, B for ball, boy, whatever, वो लैटिन से लिए गए हैं. कभी सोचा था कि ये दूसरी ही भाषा है जो हम पढ़ रहे हैं. That's why it's called global language. अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्रेजुअल चेंज होता है. ठीक है, एक ग्रेजुअल चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लुक एट अर्ली इंडिया, ठीक है, अगर हम अपने पुराने भारत को देखते हैं तो पुराने भारत में सब धोती कुर्ता पहनते थे. ठीक है, ऑल्दो अब मैं कहती हूँ दैट आई एम अ प्योर इंडियन, बट स्टिल माय फैमिली, द मेल्स इन माय फैमिली आर वेयरिंग शर्ट एंड पैंट्स, है ना. तो अब ये धीरे धीरे करके चेंज हुआ, एकदम से नहीं हुआ कि आई एम वेरी सॉरी, एकदम से नहीं हुआ कि आज धोती कुर्ता पहना फिर एकदम से सुबह उठे तो नई जनरेशन आ गई और उसने शर्ट पैंट्स जीन्स का ट्रेंड निकाल दिया. ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ग्रेजुअल चेंज. तो इसी तरह लैंग्वेज में भी ग्रेजुअल चेंजेस होने लगे. इंग्लिश लैंग्वेज 3 स्टेज में चेंज हुई. Proto-Germanic to Old English, then Middle English, and then Modern English that we are using now. In fact, the poems that you were reading in your school syllabus, वो सब Modern English में आते हैं. ठीक है? This types of language like the transformation of Proto-Germanic to Old English, मतलब जर्मन की एक ट्राइब, ठीक है, प्रोटो जर्मनिक से बना ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के बाद आया मिडिल एंड देन मॉडर्न.
प्रोटो जर्मनिक टू ओल्ड इंग्लिश। अब इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कि किस तरह से चेंज हुए और आज ये अप्लाई होते हैं कि नहीं। ओल्ड इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ नॉर्थ सी जर्मनिक डायलेक्ट्स। In the 5th century, the Anglo-Saxons settled in Britain and the Romans withdrew from Britain. क्या हुआ? एंग्लो सेक्शंस जो थे, जो ट्राइब थी एंग्लो सेक्शंस, वो ब्रिटेन में चले गए और जो रोमन्स थे वो वहां से आ गए। अब सीधी सी बात है, रोमन्स इतने साल वहां रहे तो कुछ तो इम्पैक्ट छोड़ा होगा ना, और एंग्लो सेक्शंस गए होंगे तो अपने साथ कुछ तो लेकर गए होंगे। ठीक है, तो ये काम कब हुआ? ये काम हुआ 5th सेंचुरी में। By the 7th century, the Germanic language of Anglo-Saxons became dominant in Britain, replacing the language of Roman Britain. 7th सेंचुरी में क्या हुआ? जो जर्मनिक लैंग्वेज थी एंग्लो सेक्शंस की, मतलब ये डायलेक्ट हमारी इंग्लिश, वो ब्रिटेन में डोमिनेंट होने लगी। डोमिनेंट मतलब बहुत सारे लोग उसको बोलने लगे। रिप्लेसिंग द लैंग्वेजेस ऑफ रोमन ब्रिटेन। मैंने क्या बोला था? रोमन जब गए तो कुछ तो छोड़ के गए होंगे। तो Yes, जब भी ma'am. कोई इंसान कहीं से जाता है वो अपनी कुछ इफेक्ट्स छोड़ के जाता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट इफेक्ट्स, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हियर आई कैन कोट इज द एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स, अगर मैं आप लोगों को संस्कृत में पढ़ने के लिए कोई टेक्स्ट दूं तो मे बी यू कैन रीड बट यू कांट बी वेरी फ्लुएंट इन इट, है ना। मैं अगर आपको संस्कृत में कुछ भी देती हूँ, लाइक आई गेव यू गीता, भगवत गीता, मैंने आपको बोला कि प्लीज हैप्पी इसको संस्कृत में पढ़ो, बट हैप्पी सेड मैम अगर ये हिंदी में होता तो मैं पढ़ लेता, पर दैट लैंग्वेज संस्कृत वो मुझे कहीं से दी गई है, हिंदी हुई, तब जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। Old English is very different from modern English and difficult for 21st century English speakers to understand. अगर आप लोग कुछ पोएट्स देखो पुरानी एज के, तो ये दिखने को मिलेगा कि जो सन की भी स्पेलिंग होती थी, वो SUNNE होती थी। ठीक है, गॉन की स्पेलिंग होती थी वो GONNE होती थी। ओके, तो अभी क्या गॉन की स्पेलिंग है, अभी क्या सन की स्पेलिंग है। ठीक है, मैम तो सन यही है कि ओल्ड इंग्लिश, सॉरी क्या कुछ बोला? नहीं मैम, मैं बोल रही सन की स्पेलिंग अभी सिर्फ नॉर्मल SUN है बस। SUN है, तो वही दैट्स नोन द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, संस्कृत का वर्ड जो है मातृ है ना, वहीं से क्या निकला है? मातृभाषा निकला है ना। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो ओल्ड इंग्लिश क्या अभी की इंग्लिश से बहुत ही अलग है, इतनी है कि हम उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, समझने की बात तो दूर है। इट्स ग्रामर वाज सिमिलर टू दैट ऑफ मॉडर्न जर्मन। जो अभी की जर्मन चल रही है, इफ एनीबडी इज नो हाउ टू स्पीक, तो अभी की जो जर्मन चल रही है वो उससे सिमिलर बैठती है ओल्ड इंग्लिश की ग्रामर। ठीक है, बट इट वॉज वेरी 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 टफ। आई कैन से इट वॉज 50 टाइम्स मोर टफ देन द करेंटली वी आर स्पीकिंग। मिडिल इंग्लिश, in the period from 8th to 12th century, Old English gradually transformed through language contact into Middle English. 8th से 12th सेंचुरी, मतलब आप देख रहे हो ये चेंज स्टार्ट हुआ है 5th सेंचुरी से। अब मिडिल इंग्लिश आते आते हो गया 8th सेंचुरी। अब 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी में ओल्ड इंग्लिश क्या ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होने लगी। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हुई? मिडिल इंग्लिश में। Middle English is often arbitrarily defined as the beginning of 1066. ठीक है, यहाँ से बेसिकली बोला जाता है कि यहाँ से मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई। By the 12th century, Middle English started developing. It developed further in the period from 1200 to 1450. In the Middle English period, the use of regional dialects is in writing and dialect traits were even used for effect by authors. ठीक है, डायलेक्ट के जो ट्रेड्स थे, जैसे आप लोग ने देखा होगा काफी सारे ऑथर्स जो होते हैं वो अपना नाम नहीं लिखते, है ना, वो कोई दूसरा नाम लिख के वहां पे अपना वर्क बताते हैं।
काफी सारे ऑथर्स ऐसे करते भी थे, जैसे हम उनको देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, तो ही यूज्ड टू राइट निराला देयर, ठीक है। Yes, तो ma'am. एक अलग ही नाम से आप अपनी आइडेंटिटी बताते हो, तो वहां पे क्या हुआ, मिडिल इंग्लिश की जो रीजनल डायलेक्ट्स के नाम थे वो ऑथर्स यूज करने लगे, ठीक है, वो चीजें ऑथर्स यूज करने लगे। नाउ मॉडर्न इंग्लिश जो हम आज पढ़ रहे So, हैं, ma'am, यस, I'm meeting में only 10 minutes बचे, क्या करना है? या वी आर कंटिन्यूइंग दिस। Middle English continued to be spoken until to the transition to early modern English around 1500, ठीक है। मिडिल इंग्लिश ने क्या किया, उसने जो अपना ट्रांजिशन था वो मॉडर्न इंग्लिश से 1500 तक करना जारी रखा। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश was characterized by the great vowel shift. In the late 18th century, the 13 colonies in North America achieved independence, and the subsequent period saw English become a global language, ठीक है। क्या होने लगा, एक ग्रेट वॉवल शिफ्ट हो गई, ठीक है, जो जहां वहां जो ग्रामर यूज हो रही थी वो पूरी तरह से बदल गई। In the 20th century, the growing economic and cultural influence of the United States and its status as a global superpower since the Second World War have significantly accelerated the spread of the language across the planet. वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, सोल्जर्स फ्रॉम एवरी सिटी, एवरी स्टेट वो फाइटिंग, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनमें लैंग्वेज का एक्सचेंज होने लगा, ठीक है। बाय द 21st century, English was more widely spoken and written than any other language ever has seen, ठीक है। क्या हुआ, 21st century में इंग्लिश का सबसे बड़ा ग्रुप बन गया, सबसे बड़ा ग्रुप लोगों का बन गया इंग्लिश बोलने के लिए। Braj distinguishes countries where English is spoken with a three circle model, ठीक है। इंग्लिश एक थ्री सर्कल मॉडल हम कहते हैं जो ब्रज ने हमको दिया है। इन हिज मॉडल द इनर सर्कल कंट्रीज आर कंट्रीज विद लार्ज कम्युनिटीज ऑफ नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश क्या है उस टाइम पे, जो फर्स्ट मॉडल है, जो पहला सर्कल है, इनर सर्कल है, उसमें इंग्लिश क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनेट ही हुई है, ठीक है। अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो वो कंट्री क्या कहला जाएगी, इंडिया, ठीक है। व्हाई आई एम कोटिंग दिस एग्जांपल ऑफ इंडिया अगेन एंड अगेन, टू बी वेरी मच फ्री, है ना। इफ आई एम कोटिंग योर एग्जांपल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर क्विकली। तो पहले सर्कल में वही लोग आते हैं जो उसी जगह के बोलने वाले हैं। द आउटर सर्कल कंट्रीज हैव स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश बट वाइडस्प्रेड यूज ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज इन एजुकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और फॉर लोकल ऑफिशियल पर्पसेस इन कंट्रीज। क्या हुआ, पहले सर्कल में तो जहां से ओरिजिनेट हुई वही आया, दूसरे सर्कल में क्या हुआ, वो लोग आए जो लोग बोलते तो नहीं है पर उसको यूज बहुत करते हैं। जैसे इंडिया, हम अपने घर में इंग्लिश बोलते नहीं है पर हम उसको पढ़ाई में, ब्रॉडकास्टिंग में, ठीक है, और कोई भी ऑफिशियल पर्पस होता है हम उसको यूज करते हैं। द एक्सपैंडिंग सर्कल मतलब जो लास्ट सर्कल है कंट्रीज का, वो क्या है, मेनी लर्नर्स where many learners learn English as a foreign language in countries like Poland, China, Brazil, Germany, Japan, Indonesia and India. So third circle क्या है, वो इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह लर्न करते हैं। जैसे आज हमारे लिए स्पेनिश डजंट मैटर, हमें आती है तो भी ठीक है, गुड प्लस पॉइंट, बट नहीं आती तो भी ठीक है, ऐसे ही वहां चलता है। लाइक पोलैंड, चाइना, दे रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज, दे गिव देयर ओन लैंग्वेज फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप जर्मनी जाते हो तो अगर आपको वहाँ का वीजा चाहिए तो आपको जर्मन बोलनी आनी चाहिए, वहाँ के अगर आप रेसिडेंट हो यू हैव टू नो दिस लैंग्वेज, ओके। तो ये थ्री कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं लैंग्वेज के। नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू प्रोसीड विद लास्ट स्लाइड, इंग्लिश अ ग्लोबल लैंग्वेज। English has ceased to be an English language in the sense of belonging only to people who are ethnically English. Use of English is growing country by country internally
and for international communication. Modern English, sometimes described as the first global lingua franca, is also regarded as the first world language. जो आज की English language है वो first world language recognize की गई है. English is the world's most widely used language in newspaper publishing, book publishing, international telecommunication, scientific publishing, international trade, mass entertainment. Okay, so with this, I would like to end and thank you so much for your patient listening. And I have stopped screen share. Okay, please tell me if there are any doubts. मैं आपने बोला कि सारे ABCD लैटिन से वर्ड आए हैं, तो ये कब से चल रहा था? 5th century जब बनना शुरू हुआ तब से चल रहा है. जब ग्रामर में इवॉल्व आए, ठीक है, तब ग्रामर जब बननी हुई. देखो पहले तो यूं ही लोग बोल रहे थे जस्ट फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है. उसके बाद जब लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया तो ऑफ कोर्स कोई बेस तो होना चाहिए ना किसी भी चीज को अडॉप्ट करने के लिए. इफ आई विल से दैट प्रतीक्षा जस्ट यूज दिस फोन, now I'm not telling you which is the brand, how much specifications, nothing I'm telling you. I'm just saying Pratiksha just use it. Yes, So you will not trust me. Why you will trust? Because there is no base. ओके, सो पहले बेस बना, पहले ग्रामर बनी. किसी भी लैंग्वेज का पहले बेस बनाया जाता है कि हम उससे बात कैसे करेंगे, है ना. अगर मैं आज तुमसे बोलती हूँ A for apple, then you will say ma'am why A for apple? yes, ma'am. This will be a question. Okay, so yes, this is a very deep study. I just want to give you a introducing lecture. Okay, any other doubt? Okay, did you understand full? Yes, ma'am. मैम बाकी आप नोट शेयर कर देंगे ना सारे? Yeah, I will. रीड करेंगे तो मैम हम लोगों को और इजी हो जाएगा थोड़ा सा. Sure. Okay, class. Thank you so much. Thank you, ma'am. Pratiksha, you can stop. Thank you, ma'am.